When light energy incident on a metal surface, then each photon contains the energy in packets, and this photon energy is equal to h nu. जब फोटॉन एनर्जी इस पर गिरती है, when light energy incident according to Einstein, when the light energy incident on a metal surface, then some part of the energy is used. According to Einstein, when the light energy incident on a metal surface, some part of the energy is used to liberate the electron from the metal surface, and the remaining energy is used to provide the maximum kinetic energy to the emitted electron. सर इलेक्ट्रॉन के बाद well, liberate some part of the energy is used to liberate the electron, and the remaining part of the energy is used to provide the maximum kinetic energy to the emitted electron, या to liberated electron. Remaining part of energy is used to provide the maximum kinetic energy to the liberated electron. मतलब जब यह एनर्जी सरफेस पे गिरती है तो कुछ एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन के इमिशन में खर्च हो जाती है, और कुछ एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्च होती है, यूज्ड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी. इट मींस द एच न्यू एनर्जी इंसिडेंट, दिस एनर्जी इज एच न्यू. ध्यान रखना, अगर एच न्यू एनर्जी गिर रही है तो some part of the energy is used to liberate the electron work function, and remaining part is used to provide the maximum kinetic energy, means K maximum. ध्यान में रखना 10 K maximum. यही हमारा दिस इज नोन एज द आइंस्टीन इक्वेशन. यही हमारा आइंस्टीन का इक्वेशन है. इज इट क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट K maximum it is equal to h nu minus W naught. K maximum, this implies that K maximum it is half m V max square, it is equal to h nu minus W naught. इस W naught को कहीं भी phi naught भी लिखा जाता है. This is the Einstein's equation. Einstein's photoelectric equation. This is Einstein's photoelectric equation. Photoelectric equation. Example. Einstein's photoelectric equation. If देख लेना, if nu naught be the threshold frequency, if nu naught be the threshold frequency, then ये हमारे पास threshold होता है ना, threshold. Threshold frequency, then W naught is equal to h nu naught. W naught is equal to h nu naught. Is it clear? तो ये वैल्यू हमारे पास W naught is equal to h nu naught. W naught is equal to h nu naught. Is it clear? So therefore K maximum it is equal to h nu minus h nu naught. तो हम लिख सकते हैं h nu minus nu naught. इसको हम K maximum कहते हैं. Is it clear?
फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आइंस्टीन का इक्वेशन हो गया। हाँ है तो यही है, जब हम वर्क फंक्शन यही वो डिराइव है, वर्क फंक्शन लेंगे तो W नॉट इज इक्वल टू h नॉट हो गया। तो हमारे पास ये हो गया, तो ये वैल्यू हमें ऐसे मिलेगी। अब हम इसमें आइंस्टीन की इक्वेशन के बेस पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक लॉज ऑन द बेसिस ऑफ द आइंस्टीन थियरी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थियरी। तो लिखो द वेरिफिकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक लॉज, वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक लॉज, वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक लॉज। वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ ये ज्यादा ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of Einstein's equation, on the basis of Einstein's equation। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास verification of laws, verification of laws of photoelectric effect on the basis of Einstein's equation। अब देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ the photoelectric current increases when photoelectric current increases, according to first law of photoelectric effect, the photoelectric current increases when intensity increases। The Einstein explained that when intensity increases, the number of photon increases, number of photon particles। Sir, explained that if the intensity increases, the number of photon particles increases, and each photon ejects one electron, so the photoelectrons increases, and each photon ejects one electron, so photoelectric current। Sir, each photon is one electron. each photon ejects one electron, ejects मतलब निकाल देता है one electron, each photon ejects one electron। as a result the photoelectrons increases, photoelectrons increase, as a result the photoelectrons increase, so the current increase, so the current increase। तो पहला ला एक्सप्लेन किया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ती क्यों बढ़ती है, क्योंकि फोटॉन बढ़ता है और हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा फोटॉन होगी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए हमारी करंट बढ़ जाती है। सर करंट किस एम्पियर में बढ़ती है? नहीं, मिली एम्पियर में रहती है। नहीं मतलब भाई एम्पियर में इंक्रीज होता है, जैसे 1 एम्पियर 2 मिली। हाँ, हमने कुछ न कुछ बढ़ जाता है। एम्पियर वोल्टेज, हाँ वोल्टेज तो अलग अलग फोटो वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे होता है। वोल्टेज से किस चीज पे डिपेंड करता है? हाँ वोल्टेज किस चीज पे डिपेंड करता है? वोल्टेज तो हम अप्लाई करते हैं कि उनके बीच कितना वोल्टेज है, हम अप्लाई अच्छा, अपने हाथ में। हाँ। और अच्छा, सेकंड है कि
According to Einstein's equation, note down, according to Einstein's equation, K maximum is equal to H, Second, second according to Einstein, equation, K maximum is equal to H nu minus nu naught. If nu is less than nu naught, K is negative, K maximum is less than 0, which is not possible. काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मास है, वेलोसिटी है, जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? लिखिए according to Einstein's equation, K maximum is equal to H nu minus nu naught. If nu is less than nu naught, then the kinetic energy K maximum less than 0, which is not possible. This explains that below the threshold frequency there is no emission of electron take place. This explains that below the threshold frequency there is no emission of electron take place. Third question, third point. According to Einstein's equation, K maximum is equal to H nu minus nu naught. According to Einstein's equation, K maximum is H nu minus nu naught. If nu is greater than nu naught, then K maximum is directly proportional to the frequency. K maximum is directly proportional to the frequency. Clear? This implies that the kinetic energy depends upon the frequency. Kinetic energy depends upon the frequency. And fourth law है, emission is the instantaneous process. Emission is the instantaneous process because when light incident, light has the photon particles. Sir, when Because when light incident on a metal surface, light has the photon particles. Light has the photon particles. Each photon and the electron has the elastic collision. Elastic collision. As a result, whole of the energy of photon is supplied to the electron in one lump. Whole of the energy, क्योंकि elastic collision होता है, so whole of the energy of the photon particle, clear, is supplied to the electron in one lump. एक के बार में पूरी एनर्जी दे दी जाती है. As a result, माने whole of the energy of the photon is supplied to the electron in one lump. One lump, LUMP, एक के बार में. बल्ब. क्लियर? जैसे किसी को जो है थोड़ा थोड़ा पानी पिला पूरा भर गया, तो एक के बार में इन वन लम्प एक बार में पूरी एनर्जी सप्लाई कर दी जाती. ठीक. एज ए रिजल्ट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंस्टेंटेनियस. एक्सप्लेन उसने किया कि एक के बार में पूरी एनर्जी सप्लाई कर देता है, इसीलिए इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. अभी जब आंदोलन होता है तो वाटर कैनन से जब किया जाता है, तो वाटर कैनन की टेंडेंसी क्या है
कि पहले जाएगा शरीर पे गिरेगा, जाड़ा के दिन में पहले आप जाल करेंगे तब न गर्मी ठंडक लगेगी तब न भागते हैं। अभी कहते शूट एट साइड, देखते ही गोली, गोली क्या करती है एक के बाद में पूरी एनर्जी बॉडी में डाल देती है। तो अब क्या होगा, तो तुरंत भागते हैं। वो जो गोली होती है फोटान पार्टिकल है, गोली फट से जाएगा, लगेगा वहां पे किस पर, इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन तरह से एनर्जी देता है, ठंडा के भाग जाता है इलेक्ट्रॉन। और अगर 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 वेव का क्या नेचर है, वेव गिरेगा अभी गर्म होगा तब निकलेगा ना। तो यही इसीलिए फोटान को, इसीलिए यही तो प्रूव हो गया ना कि यह पार्टिकल है फोटान, इसीलिए तुरंत निकल जाता है। अगर वह एनर्जी होता, वेव होता, तो पहले गर्म होता, तो गर्म होने के बाद तब न सरफेस से एनर्जी निकालता। थर्मियोनिक इमिशन यही होता, इसीलिए फोटान को पार्टिकल मान दिया गया कि वह एक पार्टिकल है, बंदूक की गोली की तरह एक के बार में गिरेगा, तड़ से लेके निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अभी जैसे हम कहते हैं तो हमारी वेव एनर्जी जाती है तो उतना हर्ट नहीं करती। अभी हम पार्टिकल बन के धड़ाक से दबा दें तो ये तुरंत एनर्जी काम करती है ना, ये भी एनर्जी हर्ट करती, कम करती। लेकिन अगर पार्टिकल की तरह धड़ से पूरी एनर्जी अगर कर दें, अभी तुरंत डिसिप्लिन सही हो जाती है। ये नियम। तो ये जो लाइट है फोटान का पार्टिकल है। अभी जब भी कभी शूट एंड साइड की बात होती है कि देखते ही गोली मार दो, गोली क्या है, फोटान पार्टिकल है, पूरी एनर्जी एक के बाद में बॉडी में चली जाती है। तो तुरंत जो कहा जाता है वो लोग करने के तैयार हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा आंदोलन थम जाता है। तो उसका रीजन क्या है, तभी वेव क्यों पार्टिकल समझ में आ गया। एनर्जी वेव और पार्टिकल इसलिए है क्योंकि यह एक बार में पूरी एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट में फोटॉन का पार्टिकल होता है, ये ध्यान में रखो। अब इसके बाद आते हैं डी ब्रागली। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान में रखो। अच्छा, अभी में बंद हो जाता है, सेट करना बंद हो जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, ये भी एक क्वेश्चन में भी नोट करो। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, ये भी थोड़ा देखो। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, दोनों बराबर है। 46 on the basis of Einstein's equation, ये भी on the basis of Einstein's equation। तो देखो कैसे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन के मैक्सिमम इट इज इक्वल टू एच, हमारे पास है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट है ना जी, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट है आइंस्टीन इक्वेशन। प्लैंक्स है कि प्लैंक्स है? प्लैंक्स पी एल ए एन ए एस होता है ना जी, ए एन क्या होता है, ऐसे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, के मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, बस एकदम आवाज, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स according to Einstein's equation, K maximum is equal to h nu minus w naught. H nu minus w naught. If V naught be the stopping potential, if V naught be stopping potential, then K maximum
इट इज इक्वल टू EB नॉट। तो अगर हम EB नॉट इट इज इक्वल टू लिख दें h न्यू माइनस W नॉट, तो V नॉट इट इज इक्वल टू h अपॉन E न्यू माइनस W नॉट अपॉन E। And if we draw the graph between the stopping potential and frequency, then what we get here, एक ग्राफ अगर बनाते हैं V नॉट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच, इट इज V नॉट और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर ये ग्राफ बनाएं तो वी गेट ए ग्राफ लाइक दिस, और ये हमारा इस पर माइनस W नॉट अपॉन E, ध्यान में रखो ये ग्राफ बनता है। और इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं न्यू नॉट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी और V नॉट के बीच अगर ग्राफ बनता है तो वी गेट ए ग्राफ लाइक दिस। एंड इफ वी कंपेयर दिस y is equal to mx plus c, so we get the slope y is equal to mx plus c का इक्वेशन यही होता है, तो स्लोप m होता है और यहाँ m क्या है, h अपॉन e, तो वी गेट द स्लोप h अपॉन e, और ये क्या होता है एंगल थीटा, और इसको हम अगर tan थीटा ले लें तो thus the slope is slope of graph h upon e and it is equal to tan theta, thus h is equal to e tan theta, thus h can be determined। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो और tan थीटा, we can calculate the value of h। इसी तरह से प्लैंक कांस्टेंट को निकाला गया था। tan थीटा की वैल्यू सबके लिए अलग अलग ग्राफ में डेटा दिया रहेगा। तो सर h तो कांस्टेंट रहता है फिर भी? ये h कांस्टेंट रहेगा, e और ये, तो ये जो है h की वैल्यू हमेशा h कांस्टेंट है। तो कैसे ये तो चेंज होगा, tan थीटा चेंज होगा? हाँ, तो हर बार जब भी किसी डेटा पे निकाला गया तो ये जो है इसकी वैल्यू हमेशा एक h की वैल्यू कांस्टेंट ही आती है निकाला, जो भी निकाला क्या वैल्यू है h की? 6.6 10 to power minus 34। 6.6 हाँ, 6.63 कहा जाता है लेकिन 6.6 जनरली यूज करते हैं, 10 to power minus 34। फिर h की वैल्यू हाँ, 34 क्या का है? 34 आता है क्या यूनिट है? यूनिट होता है जूल सेकंड करके ऐसे आता है ये अच्छी चीज है, प्लैंक कांस्टेंट। निकाल देना h c upon lambda। हाँ, वो एक्चुअली E इक्वल टू h होता है ना, यस इससे निकाला जाता है, कर लेना। तो ये हमारे पास h की जो वैल्यू होती है 6.63 10 to power minus 34। और देखो इसमें एक चीज और किया जाता है, इसमें वर्क फंक्शन, सर कोई यूनिट नहीं है इसकी? यूनिट इसकी होती है, इसमें एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना जी, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। जूल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का होता है सेकंड ना, जूल सेकंड आता है, हाँ जूल सेकंड, जूल सेकंड होता है, JS मतलब जूल सेकंड। अच्छा और सुनो, जूल सेकंड 1 सेकंड ऊपर चला जाएगा तो जूल सेकंड हो जाएगा। हाँ देखो, फॉर द वर्क फंक्शन इंटरसेप्ट मेड ऑन द y एक्सिस, ऑन वर्टिकल एक्सिस, लिखेंगे ये जो है W अपॉन not upon E, it is the intercept made on vertical axis, intercept made on vertical axis, therefore W naught is equal to E into intercept made upon on vertical axis, intercept made on vertical axis, ये हमारा
हमारे पास 10 ई और कितना इंटरसेप्ट है वर्टिकल एक्सिस पे, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ई इनटू इंटरसेप्ट मेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से, अभी ये भी एग्जाम में 3 मार्क्स में आया था। हाँ इतना, हाँ डिराइव किया जाएगा, वो जैसा डेटा में दिया रहता ग्राफ में उसी अनुसार कैलकुलेट करते हैं। W0 इक्वल ई इनटू इंटरसेप्ट मेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। इस ग्राफ से हम इतना चीज डिराइव कर पाते हैं। और फिर है डी ब्रागली इक्वेशन। डी ब्रागली का नाम सुने होंगे? यस सर, 11th में डी ब्रागली वेव इक्वेशन देखना, डी ब्रागली वेव इक्वेशन। थियरी पहले जानो, डी ब्रागली वेव थियरी। Light is a particle, light is a wave behave as a particle. De Broglie लिखेंगे लिख लो, अच्छा लिख भी लो। According to De Broglie, if light has the duality, light has the duality, that has the wave and particle both nature, that light has the wave and particle nature both, the light has the wave and particle both nature, so the particle should also behave as a wave. So particle should also behave as a wave. Nature loves symmetry. Nature loves symmetry. उसने कहा कि नेचर सिमेट्रिक रिलेशन से जुड़ा हुआ है। अगर लाइट वेव थी और पार्टिकल का नेचर में बिहेव कर रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है, इट शुड बिहेव एज ए वेव। इसे भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो उसने कहा कि अगर कोई अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन द एनर्जी, उसने एक्सप्लेन किया कि वो जो वेव की तरह बिहेव करना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द वेव लेंथ। तो उसको उसने डिराइव कैसे किया? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू h nu। According to Einstein, photon energy is equal to h nu. जब ये फोटॉन की तरह बिहेव h nu, and mass energy equivalence E is equal to mc square, and both energy is same. Therefore, h nu is equal to mc square. So it is mc upon lambda. It is mc square, cc cancelled out. So lambda it is equal to h upon mass into speed of light. मास into speed of light को उसने ये कहा कि लाइट जब चलता है तो यह मास उसका फोटॉन का m होता है, वेलोसिटी उसकी c होती है। तो इसको उसने मोमेंटम कहा। इट इज इक्वल टू h upon p. This is the wavelength of photon particle. This is the wavelength of light. Wavelength of light. ये लाइट का wavelength हो गया ना? This is the wavelength of light. Wavelength of light. According to De Broglie, इतना लिख लिया ना? According to De Broglie, if any particle moves with velocity v,
then its momentum will be equal to mv. According to de Broglie, if a particle moves with velocity v, its momentum will be p is equal to mv. So its wavelength should be lambda is equal to h upon p, that is h upon mv. सर थोड़ा धीरे कुछ नहीं कर 31 जाएगा फिर से बोलिए तो बात बात बोले If a particle move with velocity v, then it will behave as a wave. It will behave as a wave, and its wavelength will be lambda is equal to its momentum तो होगा mv हुआ, momentum mv, and its wavelength will be equal to h upon p, h upon mv, h upon mv. This is the de Broglie wave equation. This is de Broglie wave equation. इसी को de Broglie wave equation कहते हैं, ध्यान रखना। और उसने ये भी बताया कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो वेव लैम्डा, अगर v जीरो तो लैम्डा कितना होगा, h upon जीरो इंफिनिटी ना। इट मीन्स अगर पार्टिकल जब चलता है तभी वह वेव की तरह बिहेव करेगा। दिस इंप्लाइज दैट इफ पार्टिकल इज इन मोशन देन द मैटर वेव एग्जिस्ट। मैटर वेव तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह मोशन में होता है, इसने बताया। देन मैटर वेव एग्जिस्ट। इफ पार्टिकल इज इन मोशन देन द मैटर वेव एग्जिस्ट। और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो घूमता है दैट बिहेव एज ए वेव, वह वेव की तरह बिहेव करता है, उसने बताया था। तो de Broglie इट बिहेव देन मैटर वेव एग्जिस्ट। जब पार्टिकल मोशन में होता है देन मैटर वेव एग्जिस्ट, तभी मैटर वेव एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर? और ध्यान रखो, बस एक और एक दो पॉइंट, दो लाइन और है इसमें। एक पॉइंट और ये है, हाँ, और बस ये है कि de Broglie wavelength of an electron, de Broglie wavelength of an electron। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वेवलेंथ होता है उसका, और वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और p इज इक्वल टू रूट 2m के हुआ कि नहीं, k काइनेटिक एनर्जी, हाँ बड़े थे। और k इज इक्वल टू होता है Eb। क्लियर? देयरफॉर p इज इक्वल टू 2m Eb, और एज ए रिजल्ट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m Eb। बोलो, लैम्डा अपॉन 2m Eb। अगर हम h 2m और e की वैल्यू पुट करते हैं तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 12.3 upon root b angstrom. This is the wavelength of electron. यही डेरिवेशन हो गया, de Broglie wavelength of an electron, और यही लास्ट टॉपिक। क्लियर? दिस इज द de Broglie wavelength of electron, यही डेरिवेशन।